Now we'll balance this reaction. One, 3, 2, 2. Yes. So now what is given here? Formation दिया है, इसका formation दिया है, इसका भी दिया है और इसका भी दिया है. And they are asking you is the enthalpy of combustion. So summation of enthalpy of product minus summation of enthalpy of reactant. So that is 2 into enthalpy of formation of CO2 plus 2 into enthalpy of formation of H2O minus 1 into enthalpy of formation of C2H4 plus iska formation is 0. Okay. So now let us substitute the values of enthalpy. Minus 394. Minus 286. $52. Now, Sudhansh, find out the answer fast. हाँ मिस, 1 मिनट. This is not 165, this is 265. Now next is 268. Yes, all of you read question 268. Bond enthalpy of CH, C double bond C, HH, CH bonds are given respectively. Enthalpy change for the reaction. So what is the reaction? C2H4. C2H4. Ma'am, can you use any other color? Why it is not visible? No, ma'am, it is like scribbling on it. Now is it okay? Yes, ma'am. C2H4 plus H2 is giving you C2H6. So now enthalpy of reaction is bond enthalpy of reactant minus bond enthalpy of product. So reactant में bond enthalpy
Now, what are the bonds present in reactant side? Various bonds. There is one C double bond plus there are 4 CH bonds plus 1 HH bond. Correct, all of you? Yes, miss. Minus on product side, there is one CC bond plus 6 CH bonds. So enthalpy of reaction is 1 CC bond, C double bond, C bond. Now you can see CH इधर भी है, इधर भी है. So 4 minus 6, ना? That is minus 2 CH bond plus HH bond है 8 और minus CC bond. Now various enthalpies are given. Just substitute करो. C double bond C का enthalpy कितना है? 600 है. Minus CH का कितना है? 410 है. Plus H का कितना है? HH का 400. Minus 350. इसको सॉल्व करो, कितना आता है चेक करो आंसर. फास्ट. This is clear, all of you? Yes. Next is 284. For a reaction H2O giving 2Ag plus half O2, entropy and enthalpy change. ये नहीं करना है reaction, ये क्वेश्चन नहीं करना है अपने को. एंट्रोपी के न्यूमेरिकल्स नहीं है. मैम और डेल्टा जी पे है क्या न्यूमेरिकल? नहीं, डेल्टा जी वाले न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे. हाँ, ये आ सकता है क्योंकि इसका फॉर्मूला है ना अपने को. ये फॉर्मूला है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, जो कि हम लोग ने लिखा था क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी. सो दे आर आस्किंग यू इज द टेम्परेचर. व्हाट इज द एंथैल्पी? 30 into 10 raised to 3 joules upon this is 60. So 0.5 into 10 raised to 3. 500 Kelvin. 500 Kelvin. Two 86. हाँ, लास्ट क्वेश्चन दिखाओ ना. कौन सा? 268 इससे पहले. अच्छा, थैंक यू मिस. yes, all of you. Out of boiling point, entropy, pH, EMF.
इंटेंसिव यानी क्या? इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। तो बॉइलिंग पॉइंट तो आएगा ना? यस। हाँ मैम, बॉइलिंग पॉइंट आएगा। Yes, miss. बाकी तीनों का ये है। एंट्रोपी नहीं आएगा ना, इट डिपेंड्स ना ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। यस, एंट्रोपी डिपेंड करता है ना। हम लोग ने एग्जांपल सॉल्व किए थे, वी हैव कंसीडर्ड द मोल्स। हाँ ज्यादा, हाँ हाँ हाँ, यस मैम। प्रोडक्ट का मोल ज्यादा रहेगा तो पॉजिटिव। हाँ। सो अभी फिलहाल तुम्हें ये दो ही टर्म्स पता है, इसलिए मैंने ये दो का एक्सप्लेन किया। अभी पीएच और ईएमएफ ऑफ सेल यू डोंट नो, तो जितना पता है उतना मैंने एक्सप्लेन किया तुम लोग को। ओके, यस मैम। बाकी पीएच भी पता है ना, आयोनिक इक्विलिब्रियम वी हैव डन। सो पीएच इज व्हाट? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। हाँ मैम, यस, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस पे डिपेंड करता है सिर्फ, बाकी अमाउंट ऑफ मैटर पे नहीं डिपेंड करता है। तुम्हारा सोल्यूशन कितना है, क्या है, उस पे नहीं डिपेंड करता है, सिर्फ H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मैम ओवर, वो H प्लस भी सोल्यूशन का पार्ट है ना? yes, H plus is the part of solution. So if it changes, the amount changes, तो H plus का concentration change नहीं होगा। So now concentration यानी क्या होता है? Number of moles volume of solution. Yes, so Tanush, if you take one particular solution, ठीक है, अब ये तुम्हारा 1 लीटर का solution है। Now for this 1 liter solution pH is 5, ठीक है। अब मैंने ये 1 लीटर में से यहाँ पे 20 ml निकाल लिया इसमें से। सो क्या ये 20 ml का pH 5 रहेगा? Yes, miss. Now I have तो वो सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। if I have taken 500 ml of this solution, so pH 5 ही रहेगा। So amount change हो रहा है ना, but pH is same, so it is an intensive property. यस मैम, तो मैम फॉर्मूला में वो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आता है? आवाज नहीं आ रही है तनुज? बोल रहा हूँ मैम, फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स कैसे आए, क्यों लेते हम लोग, मतलब डिपेंड होगा ना उससे। हाँ, फॉर्मूला में आने दो, बट पीएच कैसा है तुम्हारा? पीएच चेंज नहीं होगा तुम्हारा। पीएच इज व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन, पीएच इज माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, ठीक है। बट तुम्हें फॉर्मूला नहीं देखना है तनुष, कि अभी जो मैंने ये किया ना वो देखना है। अभी जैसे हम लोग ने इसके लिए किया था, 1 मोल ऑफ वाटर इज 18, सो 2 मोल कितना होगा? 2 into 18। सो क्या हम लोग ने वहां पे फॉर्मूला, मास का फॉर्मूला देखा था? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 फॉर 1 मोल, 2 मोल के लिए भी उतना है, 3 मोल। तो क्या हम लोग ने वहां पे डेंसिटी का फॉर्मूला देखा था? नहीं मैम। वी हैव जस्ट
what we have checked, the amount of substance. Yes, ma'am. Got it. 289. W1, W2, W3, W4 are work done in isothermal, adiabatic, isobaric, isochoric reversible process. The correct order of expansion will be. See, isochoric work. Isochoric यानी क्या होता है? Delta V is 0. So W is also 0. So सबसे कम जो रहेगा वो W4 होगा. So हम कब एडियाबैटिक आइसोबैरिक के पहले के साथ हाँ मैम समझा. what? But how? See, we have a graph. P versus V. So ये ऐसे होते हैं graphs. This is an isothermal process and this is an adiabatic process. ठीक है. So अगर तुम isothermal process देखोगे, work done in isothermal process इधर से लेके पूरा इतना, हाँ, एरिया अंडर ये पूरा कर्व जो है, this is the area which is covered. This is the work done by isothermal process. And if you want to check the work done by adiabatic process, तो उसके नीचे का एरिया. हाँ मैम. एंड व्हाट अबाउट आइसोबैरिक? हाँ वही वही. सो ये मुझे रिलेशन पता है अभी. और सबसे जीरो तो रहेगा इसके लिए. तो ऐसे कितने ऑप्शंस है? ए बी एंड डी ऑप्शन है. सी ऑप्शन चला गया. तो बी ऑप्शन भी चला गया. वहां पे W2 ग्रेटर देन W1 है. ओके, सो नाउ it will be either from either A or either D. Isobaric work यानी delta U is equal to Q plus W. हाँ, तो सबसे ज्यादा होगा ना वर्क यहाँ पे. W is equal to delta U minus Q. So यहाँ पे सिर्फ U है, यहाँ पे सिर्फ Q है और यहाँ पे डेल्टा कम होगा. डेल्टा Q माइनस डेल्टा U है. एक 2 minus delta. P delta V upon that is
Q minus W, Q minus U. एक्सपांशन है तो ये नेगेटिव ही रहेगा। इसका आंसर क्या दिया है? डी दिया है ना। It's an expansion. Yes, Tanush, if you draw a graph for isobaric, so pressure constant, and this is the volume. So area which will come under this, it will be more. Yes, ma'am. इसमें कैसा ये पूरा इतना पार्ट आता है। आइसोबैरिक में क्या हो जाता है, ये ऐसा आता है ना। दिस इज आइसोथर्मल वर्क, दिस इज एडियाबेटिक वर्क, समझा। हाँ, इसमें कैसा होता है, ऐसा ये पूरा रीजन आएगा, सो इट इज मोर। ओके, सो यहाँ पे W3 आएगा। दिस इज क्लियर ऑल ऑफ। ऑप्शन डी होगा ना। हाँ, ये समझा ना, ग्राफ इज आइसोबैरिक। यस। Next is 292. Which of the following does not exhibit zero entropy at absolute zero? ये ओमिट होगा ना मैम। Yes, it's based on third law of thermodynamics. 295. Calculate heat of formation of benzene from the following data assuming no resonance. Formation of benzene क्या लिखेंगे हम लोग? Reaction क्या रहेगा? Yes. Yes. All of you. So इधर तो bond नहीं है. HH will have bonds. So here everywhere C is there, and
there is a bonding of H with C. Okay. बट यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा गैस होगा, बराबर। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Six into atomization of this. Plus 3 into मैम atom. कार्बन इज नॉट बॉन्डेड राइट, आपने बोला था, तो फिर लेंगे कैसा हीट ऑफ एटम? हाँ, बट कार्बन जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है ना, सो उसका एटमाइज, उसको सॉलिड स्टेट में है, मींस एटम्स विल बी बॉन्डेड विद अदर कार्बन एटम्स, करेक्ट ना तनुष? हाँ मैम, सॉलिड में कि गैसियस में? सी, कार्बन का जो स्टेबलेस्ट फॉर्म है वो ग्रेफाइट है, सो ग्रेफाइट में कार्बन कैसा होता है, हेक्सागोनल फॉर्म में होता है, बराबर ना? तो उसको यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा ना, सिंगल करना पड़ेगा कि नहीं, उसको निकालना पड़ेगा ना यहाँ से बाहर, यस तभी मैम। जाके उसके बॉन्ड्स बनेंगे, तो उसके लिए इतना एंथैल्पी लगता है एक के लिए। क्लियर? -3 CC बॉन्ड्स है ना, सो 140 प्लस 3 सिंगल C के बॉन्ड्स है। मैम आज सीटी का लेक्चर है क्या? हाँ, अभी फिलहाल सीटी का है, सीटी का डाउट सॉल्विंग रहेगा, तो उसके बाद मैं बोर्ड्स करने वाली हूँ स्टार्ट। तो मैंने वैसा स्टार्टिंग में ही बोर्ड स्टूडेंट्स को अनाउंस किया था लेक्चर के। ओके मैम, तो फिर अभी अटेंडेंस लगाऊं कि फिर बाद में लगाऊं? हाँ, आप बाद में ही लगा दो ना अभी। और एक्चुअली यहाँ पे 2-3 बच्चे आज जाने वाले हैं, अच्छा, टीपी भाटिया के, उनका कुछ प्रैक्टिकल का इंटरनल्स कुछ है कॉलेज तो में। जो टीपी भाटी जो भी जाने वाले हैं ना, वो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं जब बोर्ड स्टूडेंट्स आएंगे उसके बाद अटेंडेंस लगाऊंगी, तो मुझे बता देना फिर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? मैम व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है ना? हाँ, व्हाट्सएप पे कर देना मुझे। केस इसको कैलकुलेट करो, यू विल गेट आंसर। कितना आता है इसका आंसर? 75 किलो कैलोरी। यस ऑल ऑफ यू, 75 यस मैम। कैलोरी। नेक्स्ट इज 303। 303।
इसको पूरा अच्छे से लिखो। ये जो रिएक्शन, ये जो दिया है रिएक्शन, see everywhere carbon is there. मैम और हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होगा सिंगल बॉन्ड। हाँ, yes, to make it stable. Plus HH is giving you so now Tanush, you can find, you can count bonds and you can find. मैम Yes. मेरे को बाउंस काउंटिंग में प्रॉब्लम है, बॉन्ड्स का काउंटिंग में। आप एक बार बस ये लिख सकते हो। अभी यहाँ पे इधर रिएक्टेंट साइड में कितने CH बॉन्ड्स है? 5 ना, सॉरी CC5 बॉन्ड्स है, हाँ प्लस 1 C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है। यस मैम। फिर CH के कितने बॉन्ड्स आएंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर है 10 है। यस यस। तो 10 CH bonds plus 1 HH bond minus 6 CC bonds plus कितने हैं CH bonds? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। मैम पीछे ना वो लोग ने ना 6 CH लिया है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 8 CH बॉन्ड लिया है। So फिर इसके अकॉर्डिंग अभी 1 2 3 4 5 6
Ma'am, but what about the another hydrogen? इसका ये कंपाउंड देखना पड़ेगा कौन सा कंपाउंड है। अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो इसमें हो सकता है कि हाइड्रोजन्स कम हो। But जो bonds दिखा है इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी 8 हो गया ना। सो एवरी कार्बन उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 बॉन्ड्स बना रहा है कार्बन। इसमें कंपाउंड कौन सा है? C6 C6 1 2 3 4 5 6 बेंजीन है तो एक से ज्यादा होना चाहिए डबल। एनीवेज ये क्वेश्चन को मार्क करके रखो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा क्या है, ऐसे कैसे एक H आता है। ओके Yes, ma'am. Okay, ma'am. नेक्स्ट इज 348 348 348 hot water in a sealed vessel. Sealed है ना, so it is an isolated. And water है means उधर gas भी है and water भी है, liquid भी है, so it is heterogeneous isolated. Okay? तो अगर दो डिफरेंट फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं एक सिस्टम में, तो उसको बोलते हैं हेटेरोजेनस। Yes. If you have same phases together, then it is homogeneous. मैम मुझे लगा सील्ड है तो हीट एक्सचेंज होगा, इसके लिए मैं क्लोज्ड समझा था। Sealed यानी तुम्हारा it is a thermos, you can think. So it ओके is under isolated. लेकिन अगर एक स्पेसिफिक सिस्टम में एक ही फेज में लेकिन दो अलग कंपाउंड्स है, तो फिर वो भी होमोजेनस होगा कि वो हेटेरोजेनस होगा? अगर सेम फेज है तो इट इज होमोजेनियस। ओके मैम। 377 all of you 377 heat of formation of H2O CO2 and C2H4 are given and heat of combustion। so तुम पहले heat of combustion लिखो।
हाँ मैम ये समझा। ये अभी मैंने जस्ट करवाया था. Yes, ma'am. सो नाउ यू विल डू ना. इसका 0 आएगा, बाकी इन लोग का हीट ऑफ फॉर्मेशन. मैम एक पूछना था, हेस लॉ जो है ना वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे कैसे बेस्ड? क्या क्या? हेस लॉ, हाउ इज हेस लॉ बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? हाँ, heat is neither created nor destroyed, gets converted from one form to हाँ another. ठीक है समझा। 379. वर्क ऑप्टेंड साइक्लिक प्रोसेस तुम लोग को नहीं है. थ्री 83, which is not endothermic. Conversion of graphite to diamond. Heat will be required. Heat is required, not an endothermic process where not electrolysis of water. Combustion, na? Combustion is not endothermic process. It is an exothermic process. Heat is released. Yes. 399. Under which of the following condition is the relation delta H delta U plus P delta V valid for closed system? क्या कंडीशन पे है? Isothermal P delta V, isothermal, isobaric, and composition is same. Okay. मैम बट वो कैसे आया? See, तुम्हारा कंपोजिशन तो रिएक्शन जो तुम्हारा अंदर गैस है. हाँ वो मैटर सेम रहेगा समझा मैम। हाँ, फिर टेम्परेचर भी सेम रहेगा ना. ये जितने भी हम लोग ने प्रोसेसेस पढ़े सब आइसोथर्मल प्रोसेस ही है ना. यस मैम। सो टेम्परेचर एंड कंपोजिशन जो सेम इसमें है, दैट इज डी ऑप्शन. तो इट्स डी. ठीक है। 408. Molar heat capacity is. Yes, all of you, we have discussed this, Tanush. Molar heat capacity, molar heat capacity. Molar heat capacity यानी क्या? 1 मोल के लिए जो हीट लगेगा वो. So it is an intensive property, ना? It will remain same for every mole. ओके मैम हाँ समझा। 367. तो वो सिर्फ एक मोल के लिए ही रहेगा ना मैम, हमेशा उसका वैल्यू हाँ, सेम ही रहेगा। मोलार का मतलब ही 1 मोल है ना. So Hess law is an application of first law of thermodynamics. हाँ वो समझा मैम। So Tanush, तुम्हारे doubts खत्म हो गए. Now next is Jay's doubt. 348 was done. 356. 356. Heat of formation of SO2. 356. Heat of formation of SO2. Reaction है S plus O2 is giving you SO2. What is the heat of combustion of SO2? इसका उल्टा रिएक्शन जय.
Okay. Now this is the heat of combustion of SO2. ये तो ऐसा ओके हाँ. Heat of combustion of SO2. मैम ये रिकॉर्डिंग्स कब तक मिलेगा? मैं तो आज ही सबमिट कर दूंगी. इसका आंसर क्या दिया है 356 का? Three 56 is D. मैम इसका आप रिकॉर्डिंग मुझे भेज सकते हो क्या? एक्चुअली मैं सर को बोल दूंगी कि अर्जेंट बेसिस पे ये अपलोड करने के लिए, बट आई कैन नॉट गिव रिकॉर्डिंग. ओके मैम, नो प्रॉब्लम. थैंक यू. डी आ रहा है ना इसका आंसर. 4 grams combustion of SO2. Yeah, so it is not SO2, it is sulfur. See, यहाँ पे correction आएगा. It is what is the heat of combustion of 4 grams of sulfur? ये question आएगा. Okay. So S plus O2 is giving you SO2. इसका एंथैल्पी है -298 किलोजूल. मिस सो यू मीन कि 4 grams ऑफ सल्फर आना चाहिए असल में. हाँ. ओके. सो 32 के लिए 298 है. सो 4 के लिए कितना? क्योंकि यही है ना, फॉर्मेशन एंड कंबशन रिएक्शन इज द सेम. यस मैम. So now you will get D option. Clear? Yes, ma'am. यस मैम. Then 266, the correct equation. 266. Sorry, 366. 366. हाँ, 366. The correct मिस equation. 366 में लास्ट जो दो ऑप्शन है सी और डी वो तो सेम है, फिर भी उसमें आंसर डी बता रहा है, पता नहीं क्यों. हाँ, क्योंकि सी में देखो ना स्टेट्स नहीं दिए हैं, and we should have states always. States of a substance. उसमें देखो ना सी में क्या दिया, सिर्फ C plus half O2 is giving you CO2. But in D they have given Okay. C solid plus half O2 gas is giving you CO2 gas. Clear? यस मिस. 368, heat of hydrogenation of ethylene is X and that of acetylene is Y.
change in enthalpy when acetylene is hydrogenated to ethylene. Acetylene यानी C2H2 gets converted to means plus H2 gives you C2H4. This is the required reaction. ये required reaction है तुम्हारा. Hydrogenation of ethylene is X. And that of acetylene is Y. This is X, this is Y. So now you have to adjust these two reactions in such a way that you should get required reaction. तो तुम्हें क्या करना होगा? बताओ. इसको रिवर्स करेंगे ना? यस मिस, ताकि Okay. C2H6 कैंसिल हो जाए. C2H6 और ये जो है वो यहाँ पे चाहिए, प्रोडक्ट में चाहिए, यहाँ पे रिएक्टेंट में है C2H4 plus H2. This is cancelled. फिर आ गया ना रिक्वायर्ड रिएक्शन. यस मिस. सो ये क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा और ये y हो जाएगा. So this is y minus x. Okay. यस. 269 for the reaction C3H8 plus 5O2 is giving you 3CO2 plus 4H2O. क्या फॉर्मूला है? डेल्टा मिस H. फॉर्मूला तो इसका है कि nRT लाइक डेल्टा nRT, लेकिन उसमें डेल्टा n कैसे फाइंड आउट करना है कोई प्रॉब्लम. Delta N is what? Number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant. So product में क्या आएगा? Gaseous product. This is 3 minus water जो है वो liquid में है ना, तो उसको नहीं consider करेंगे. We'll only consider gas. ओके. So this is 1 minus 5. एक मिनट मैंने मिस्टेक किया. 6. Okay, so it is minus 3 RT. This is clear? Yes, ma'am. यस मिस. थ्री 392. ये 392 अपने को नहीं है केमिस्ट्री में. 393 is also not there. 403. Universe represents a system which is isolated. यूनिवर्स में से बाहर हीट ना तो जा सकता है ना आ सकता है. So it is an isolated.
405. Heat of combustion of graphite and diamonds are given. Heat of transformation of C graphite to C diamond. इसका ट्रांसफॉर्मेशन का एंथैल्पी पूछा है. Combustion of graphite is given. Combustion of diamond is given. This is 393.5 and this is 386. So ये जो है so you have to adjust these two reactions in such a way that you should get this reaction. So इसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, बराबर ना? Yes, miss. वन 1.9 minus. Okay. ये समझा जाए? मिस लेकिन इसमें आंसर जो है लाइक पीछे बता रहे हैं कि वो पॉजिटिव 1.9 है. मेरा भी एक्चुअली साइन का ही प्रॉब्लम हो रहा है. मुझे माइनस 1.9 आया लेकिन असल में है प्लस 1.9. हाँ, हीट ऑफ कंबशन है ना. दिस इज माइनस. सो ये प्लस हो गया. सो अभी आएगा ना प्लस. एक मिनट मिस, ये कैसे किया आपने? हीट ऑफ कंबशन ना. कंबशन हीट इज ऑलवेज नेगेटिव. मिस आपका आवाज बहुत लो आ रहा है. हीट ऑफ कंबशन है ना. हीट ऑफ Okay. कंबशन इज नेगेटिव ना, एक्सोथर्मिक ना. यस मिस. फोर 418. Identify the invalid equation. C आएगा ना. Enthalpy of reaction is bond reactant bond minus product bonds. Yes, correct ना. Yes, Jay. यस मिस. So Jay, तुम्हारे डाउट्स खत्म हुए. स्टेफी 260. स्टेफी है ना यहाँ पे. Yes, miss. Calorific value of food and fuel are determined by. तो ये अपने को नहीं है ये सब इक्विपमेंट्स. दिस बॉम्ब कैलोरीमीटर. टू 270 क्या दिया है? Daily requirement of energy of person is X kilojoule. If heat of combustion of food is Y, means 1 mole food का जो combustion है वो -Y है. Then his daily consumption of food in grams will be. So 1 mole यहाँ पे दिया है, it is 100 grams. 100 grams जो है वो -Y हीट इवॉल्व करता है. तो अगर तुम्हें डेली रिक्वायरमेंट है X किलो जूल का तो कितना फूड लगेगा? This is clear? Yes, miss.
नेक्स्ट है 283. In which of the following cause does entropy decrease? Expansion of gas. जब भी gas expand होगा तो disorderness और बढ़ेगा ना. Now suppose this is the gas. Now it is getting expand. Means ये और दूर जाएगा एक दूसरे से. So disorderness और बढ़ेगा. Decrease नहीं होगा. Dissolution of NaCl in water. NaCl initially it is in solid state. When it goes in water, it gets converted to liquid, aqueous. So disorderness बढ़ेगा. Fusion of ice. Fusion यानी melt होना. H2O solid gets converted to liquid. Disorderness बढ़ेगा. Polymerization में क्या होगा? Many monomers comes together forming a bond. तो यहाँ पे क्या होगा? कम होगा. Disorderness कम होगा. Bonds बनेंगे ना, monomers, single monomers will come together to form polymer. So लोग बनते जाएंगे bond से monomer. So disorderness कम होगा. Clear? Yes, miss. 406. In a natural process, in any natural process, ये तुम लोग को नहीं है. You can skip this question. 406. 315. मैम हाँ. बोर्ड्स लेक्चर शुरू हुआ है? नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने मैसेज नहीं किया ना ग्रुप में. अच्छा ठीक है ठीक है. हाँ, मैं आपको भी मैसेज कर दूंगी. ओके मैम ठीक है. 315. Enthalpy change for the following processes are listed below. Given that standard states of iodine and chlorine are the standard enthalpy of formation of ICl. Standard enthalpy of formation of ICl. I2 plus Cl2 is giving you ICl. इधर 1 मोल ही होगा. So given 4 reactions को तुम्हें ऐसे एडजस्ट करना है कि तुम्हें ये रिएक्शन मिलना चाहिए. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट रिएक्शन जो है तुम्हें, फर्स्ट रिएक्शन जो है उसमें Cl2 is giving to Cl. तो रिएक्शन कैसा होना चाहिए? हाफ Cl2 is giving Cl. So फर्स्ट रिएक्शन 1 को डिवाइड करेंगे 2 से. सेम रिएक्शन 2 को भी डिवाइड करेंगे 2 से. थर्ड को रिवर्स करेंगे. और ये स्टैंडर्ड स्टेट्स भी लिखो इनका.
इसको डिवाइड करने का 2 से, सेकेंड वाले को भी डिवाइड करने का 2 से, थर्ड वाले का साइन अपोजिट हो जाएगा, एंड फोर्थ वाले को भी डिवाइड करने का 2 से. So now further you can calculate, Steffi. Yes, miss. Steffi, check out if it is coming correct or not. Yes, miss. Yes, miss. Correct. I am. Next is 298. Enthalpy change in the oxidation of glucose is minus 2880. 25% of this energy is available for muscular work. If 100 kilojoule of muscular work is needed to walk 1 kilometer, then maximum distance that a person will able to walk after eating 120 grams glucose will be. Yes, all of you read करो पहले question को 298. Read it carefully first. Yes, all of you read किया सब लोग ने. So क्या बोला है, 1 mole oxidation of glucose is minus 2880 किलोजूल पर मोल, यानी 180 ग्राम्स के लिए. तो 120 ग्राम्स के लिए कितना?
कितना होगा? मिस हम लोग डायरेक्टली -2880 ले लेंगे, क्योंकि उसमें ये भी दिया है कि 25% ऑफ दिस एनर्जी इज अवेलेबल फॉर मस्कुलर वर्क, हाँ तो उसका हाँ 25% लेके नहीं करना होगा। हम इसका भी 25 निकाल सकते हैं ना? हाँ मिस वैसे भी कर सकते हैं। सो इसका 25%। This is available for muscular work. So 1 किलोमीटर चलने के लिए 100 किलो जूल लगता है. So 480 किलो जूल में कितना किलोमीटर? 4.8 किलोमीटर. Is it correct? यस मिस, आंसर 4.8। थ्री 392. थ्री 392 नहीं करना है. 284. 284 मैंने किया था स्टार्टिंग में. Yes, miss. सो स्टेफी के डाउट्स खत्म. प्रज्ञेश 265. So 265 was done in start only. 267. Enthalpy of bond dissociation of H2Cl2 and HCl are given. Enthalpy of formation of HCl. So enthalpy of reaction is bond enthalpy of reactant of product. So half into HH bonds. Plus half into Cl-Cl bonds. Minus 1 into 103. 52 plus 29 minus 103. कितना आता है? चेक करो आंसर. Minus 22. Yes, ma'am. 268 was done. Yes. Next is 314. 314.
If bond dissociation energy, all of you read 314 carefully. Bond dissociation energy of XY, X2, Y2 are in ratio of 1:1:0.5. Then formation of XY is minus 200 kilojoule per mole. Bond dissociation enthalpy of X2 is. So write down the required reaction. Formation of XY. So enthalpy of reaction is half into XX bond. XX बॉन्ड का एंथैल्पी कितना दिया है? X XX is X, मैं इसको X ले लेती हूँ. YY का कितना है? हाफ है, हाफ X माइनस X. एंड एंथैल्पी कितना है इसका? फॉर्मेशन एंथैल्पी minus 200. $800. This is clear? Yes, ma'am. 315 हो गया. Yes, all of you, any other doubts you want to ask for thermodynamics, you can ask. Otherwise, we'll declare कि chapter is over. If anyone else has any questions to ask, can ask. ठीक है, so you don't want to ask anything, so let us start with P block. So all of you, मैं क्या कर रही हूँ, मैं end कर रही हूँ session क्योंकि P block का अलग recording मुझे करना पड़ेगा. So मैं इसको end कर रही हूँ. You have to again rejoin on same link. Clear? सब लोग है ना? रिकॉर्डिंग बंद करके
नहीं, वो वैसे नहीं होता है, वो अच्छा। सेम इसमें ही हो जाता है. So that's why there is no problem ना to get rejoin again. नहीं मैम कोई नहीं है. मिस No नो सब प्रॉब्लम. लोग है ना, जगह है ना सब लोग? क्या सब बोला? जगह. हाँ सब मिस. सबने सुना Yes, ना? ma'am. Yes. हाँ. Yes, ma'am. Okay.